ওকে, সুইচ কেস আমরা পড়েছিলাম বিভু, একটু দেখে নাও। সুইচ কেসটা তুমি বলছিলে প্রবলেম আছে বা তোমার অসুবিধা হয়েছে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। আমি একটা নোট নোট করেছি সুইচ কেসে। আমি দেখাচ্ছি নোটটা। ওকে, দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। আমরা যেগুলো করেছি আপাতত সেইগুলো আমরা করেছি। এই দেখ, সুইচ কেস এটা বাদ দাও, হোয়াইলটা বাদ দাও, ডুটা বাদ দাও, আর ডানটা বাদ দাও। এটা আমি করেছি কেন না, এটা আমরা হোয়াইল কোলন দেওয়া মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো লুপকে ইনফাইনাইট বার এক্সিকিউট করতে চাই, আইদার উই ক্যান ইউজ হোয়াইল কোলন অর হোয়াইল স্পেস ট্রু, তাহলে লুপটা ইনফাইনাইট বাই চলবে। এখানে এইটুকুনি পার্ট হচ্ছে সুইচ কেসের পার্ট। এখানে কি ধরে নাও আমার অনেকগুলো সুইচ আছে, আমি প্রথমে এখানে ইকো করে দেবো, ইকো 1 প্রেস করলে এটা হবে, 2 প্রেস করলে এটা হবে, 3 প্রেস করলে এটা হবে। এবার যেটা প্রেস করবে সেটা ইনপুট হিসাবে নিতে হবে, রিড ইনপুট, এটা ইনপুট হিসাবে নেব। যেভাবে কেসটা লিখতে হয় দেখো, ইনপুটের মধ্যে এখন একটা ভ্যারিয়েবল আছে, একটা ভ্যালু আছে 1 2 3, যে কেসের ভ্যালু সেগুলো রয়েছে। এবার তুমি লিখবে কিভাবে কেস, এই যে কেস, এই লেখাটা লিখতে হবে কেস, তারপর হচ্ছে ভ্যারিয়েবলটার নাম, তারপরে ইন, তারপরে কেসটা ধরে নাও কেস 1, এখানে কেস 1 তো এভাবে লিখলে হবে না, তোমাকে লিখতে হবে 1। যদি তুমি 1 প্রেস করলে এটা হয়, 2 প্রেস করলে এটা হয়। যে ভ্যালুটা তুমি নেবে, যে ভ্যালুটা নেবে তার রেসপেক্টে এখানে এই কেসগুলোকে দিতে হবে। তাহলে আমি ধরে নাও 1 প্রেস করতে বলেছি, তাহলে 1 প্রেস করতে বলে কেসের জায়গায় 1 পড়বে। যদি 2 প্রেস করতে বলি কেস 2 এর জায়গায় 2 পড়বে। এইভাবে কেসগুলোকে আমরা বানাবো। আর করসপন্ডিংটা স্টেটমেন্ট, তার করসপন্ডিং স্টেটমেন্ট, দ্যাট মিনস কেস 1 এর জন্য আমার এই স্টেটমেন্ট, কেস 2 এর জন্য এই স্টেটমেন্ট, কেস 3 এর জন্য এটা। আর ডিফল্ট স্টেটমেন্ট যখন আমরা দেব তখন স্টার, স্টার, তারপর হচ্ছে একটা ব্র্যাকেট, স্টার ব্র্যাকেট, এটা মানে হচ্ছে ডিফল্ট স্টেটমেন্ট। আর এই যে ব্র্যাকেট গুলো দিয়েছি, যে কোলন গুলো দিয়েছি, এগুলো হচ্ছে ব্রেক করা। ব্রেক মানে হচ্ছে কেস 1, কেস 1 এর কাজটা করে কেস থেকে ব্রেক করে যাবে। মানে ঠিক আছে, এবার ইন্টিগ্রাল। হ্যাঁ যেরকম ভাবে হয় কেস 2, কেস 2 এ কেস 2 এর পার্টিকুলার কাজটা করে কেস 2 থেকে ব্রেক করে যাবে। এইভাবে করতে করতে যখন সমস্ত কেস কমপ্লিট হয়ে গেল ইনক্লুডিং দ্য ডিফল্ট কেস, তখন তুমি কেসটাকে কমপ্লিট করবে কিভাবে না, কেসটাকে উল্টে দাও, এই কেস লেখাটাকে উল্টে দাও, উল্টে ইএস এখানে লিখে ইএস দাও। হ্যাঁ, ইএস। যেরকম আমরা ইফ কে ফাই লিখি, সেরকম হ্যাঁ কেসকে আমরা লিখি ইএসএসি, ইএসএসি। এইটা হয়ে গেল তোমার সুইচ কেস। তাহলে এবার যদি তোমাকে বলে যে তুমি একটা ক্যালকুলেটর বানাও, তাহলে ক্যালকুলেটর আমরা বানাতে পারি। কিভাবে বানাতে পারি, 1 প্রেস করলে অ্যাড হবে, 2 প্রেস করলে হ্যাঁ সাবট্রাকশন হবে, 3 সাবস্ট্রাক্ট প্রেস করলে 3 প্রেস মাল্টিপ্লিকেশন। করলে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, 4 প্রেস করলে ডিভিশন হবে। ঠিক আছে, 5 প্রেস করলে মডিউলও হবে। তাহলে কি করবে না, তুমি এরকম একটা প্রিন্টএফ করে, এই প্রিন্টএফ না, এখানে ইকো করে তুমি ভ্যালুগুলোকে শো করিয়ে দিলে যে 1 কোনটা প্রেস করলে কি হবে। তারপরে তুমি রিড করে সেই ভ্যালুটা ইউজারের কাছ থেকে চেয়ে নিলে। এইবার তুমি যে ইউজার যে ভ্যালুটা দিল সেটাকে কেসের মধ্যে ফিট করে দিলে, এবং তার করসপন্ডিং প্রত্যেকটা কেস এখানে ডিফাইন করা আছে। ইউজার যে কেসের ভ্যালুটা দেবে, যে রিডের ভ্যালুটা দেবে, ইনপুটের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে তার করসপন্ডিং সেই কেসে যাবে, গিয়ে তার করসপন্ডিং সেটা সেই স্টেটমেন্টে এক্সিকিউট করবে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে আমার সুইচ কেসের বেসিক একটা স্ট্রাকচার। এবার এই সুইচ কেসটাকে যদি তুমি একটা লুপের মধ্যে চালাও, তাহলে লুপের মধ্যে ওটা বারবার চলতেই থাকবে, তুমি অ্যাডিশনও করতে পারবে, অ্যাডিশন কমপ্লিট হয়ে গেলে আবার মেনুটা আসবে, আবার সেখান থেকে তুমি সাবট্রাকশন করতে পারবে, আবার মেনুটা আসবে, আবার সেখান থেকে মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারবে। ফলে কি হবে, তোমার প্রোগ্রামটা প্রোগ্রামটা বন্ধ হবে না, প্রোগ্রামটা চলতেই থাকবে, প্রোগ্রামটা চলতেই থাকবে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা কাজ করতে পারি। ওকে বিভু, আর কোনো প্রবলেম আছে? ओके, सो हम लोग अभी चले जाते हैं एरे, एरे सेक्शन में। एरे सेक्शन में हम लोग चले जाते हैं एरे में। एरे का पार्ट थोड़ा बोल देते हैं आज, उसके बाद हम काम करेंगे। सो एरे एक्चुअली क्या होता है, एरे होता है एक बफर। बफर मतलब जिसके अंदर हम कुछ डेटा रख सकते हैं। बट नॉर्मल जो सिंगल बफर होता है, सिंगल बफर के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू एट ए टाइम रख सकते हैं।
बट इन केस ऑफ द एरे हम लोगों ने मोर देन वन डेटा को एट ए टाइम उस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। जब हम मोर देन वन डेटा को एक साथ एक पर्टिकुलर स्टोरेज में रख सकते हैं और उसको छोटा छोटा लॉजिकली पार्टीशन कर सकते हैं, और जो डेटा रहेगा वो डेटा जब कॉन्टिगुअस लोकेशन में रहेगा और तुम्हारा पास जो डेटा है उसका टाइप सेम होगा, तब हम बोलेंगे ये एक एरे है। सपोज हम एक एरे में, हम जब एरे बोलेंगे यहाँ पे एरे में हम बहुत सारा डेटा एक साथ रख सकते हैं, और डेटा जो होगा वो डेटा कॉन्टिगुअस लोकेशन में होगा। एक साथ बहुत सारा डेटा कॉन्टिगुअस लोकेशन में जब रख सकते हैं, तब वो बफर को हम बोलेंगे एरे। हम जब नॉर्मली लिख सकते हैं, हम जब बोले थे ए, हम जब एक ए डिक्लेयर किया था, मेरा जो वेरिएबल सपोज ए डिक्लेयर किया था A10, तब ए क्या है, एक बफर है। दैट मीन्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, जिसके अंदर हम कोई एक डेटा, कोई एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम। बट तुम दूसरा कुछ टाइम बाद तुम ए के अंदर और कुछ डेटा स्टोर कर सकते हो, तब क्या होगा, प्रीवियस जो डेटा है वो डेटा डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स एट ए टाइम कोई वेरिएबल के अंदर हम एक डेटा रख सकते, तब उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। यहाँ पे हम ए वेरिएबल बोल रहे हैं, एक्चुअली एक बफर है। जब तुम 10 दे रहे हो, 10 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कुछ मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तुम्हारा रैम के अंदर कोई भी एक लोकेशन में वो स्टोर हो रहा है। बट ये सिंगल लोकेशन है, सिंगल लोकेशन में वो स्टोर होगा क्योंकि वेरिएबल्स है। जब हम एरे बोलेंगे तब क्या होगा, एरे के अंदर हम ये 10 के छोड़ के और ज्यादा कोई भी मोर देन वन डेटा स्टोर कर सकते एट ए टाइम। सो इसके लिए भी मेरा मेमोरी में स्पेस लगेगा, वो स्पेस के अंदर मेरा डेटा वन बाय वन कॉन्टिगुअस लोकेशन में, कॉन्टिगुअस मतलब पर कॉन्टिगुअस लोकेशन में वो डेटा स्टोर होगा। सो वो टोटल जो ब्लॉक ऑफ डेटा जिसके अंदर हम मोर देन वन डेटा को स्टोर किया है, उसको फेच करने के लिए हमको एरे का यूज करना पड़ता है। ये एक वेरिएबल है, हमको एरे का यूज करना पड़ता है। सो हम एरे नॉर्मली कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एरे जब डिक्लेयर करेंगे, हम एरे को डिक्लेयर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज मेरा जो ARR है, सपोज हम एज्यूम कर लेते ARR मेरा एक एरे वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा डेटा रख सकते। हम दो तरीके की हिसाब से एरे में डेटा रख सकते। एक हम इनिशियलाइज कर सकते एरे जब हम डिक्लेयर कर रहे थे, ये जब एरे ARR हमने लिखा, ये एक्चुअली डिक्लेयर हुआ, डिफाइन हुआ। एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन आई एम ऑलरेडी इनिशियलाइज दिस एरे विद सम वैल्यू, हम कुछ सम वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर सकते, एक टेक्निक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम कीबोर्ड से डायनामिकली जब हम मोर देन वन डेटा रखेंगे, तब हम डायनामिकली वो एरे के अंदर रख सकते हैं। दोनों चीज से हम एरे को स्टोर कर सकते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे। सो सपोज हम चाहते कि एरे के अंदर हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते, तो एरे इक्वल्स टू ARR मेरा वेरिएबल का नाम, यहाँ पे जब दिखाया था A इक्वल्स टू 10, ये एक वेरिएबल है। ये ARR ये भी एक वेरिएबल है, बट ये सिंगल वेरिएबल है, बट ये एक एरे है। हम एरे बनाना चाहते, एरे की कैसे बनाएंगे, एरे इक्वल्स टू देके फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम थोड़ा कुछ वैल्यू ले लेते, से 3 10 वैल्यू ले लेते, 5 ले लेते, 4 ले लेते, 8, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते। सो मेरा क्या है, मेरा जो ब्लॉक ऑफ कोड, दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ जो स्टोरेज हुआ, उस स्टोरेज के अंदर हम 5 डेटा एक साथ, यहाँ पे डॉट हो गया या कॉमा होगा, एक साथ बहुत सारा डेटा हम रख सकते हैं। दैट मीन्स ARR के अंदर अभी 3 10 5 4 8 ये डेटा है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो 3 है, ये एक छोटा खोप में है, दैट मीन्स छोटा पॉकेट में है। ये भी एक छोटा पॉकेट में है, ये भी छोटा पॉकेट में है, ये भी छोटा पॉकेट में है, और ये भी छोटा पॉकेट है। ये पॉकेट जो है ये लॉजिकल पॉकेट है, ये कोई फिजिकल पॉकेट नहीं है। ये मेमोरी लोकेशन में छोटा छोटा पॉकेट हमने लॉजिकली सोचा है। हमने सोचा है जो पहला वाला जो हमने एलिमेंट को सोचा है, इस पहला वाला एलिमेंट को हम बोलेंगे ये वाला जीरो इंडेक्स, दैट मीन्स जीरोथ लोकेशन है।
ये इसको बोलेंगे ये फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन मतलब इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। दैट मीन्स जब मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, सो हमको स्टार्ट करना होगा 0 से, स्टॉप होगा 4 में। दैट मीन्स 5 - 1 तक वो चलेगा, 5 - 1 तक वाला उसका काउंट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और एक जो साइज है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे एक कम तक वो स्टॉप होगा। दैट मीन्स कोई एक एरे में जब n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा, तब हम स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से, स्टॉप करेंगे n-1 से। दैट मीन्स 0 to n-1 तक मेरा डेटा रहेगा, और मेरा जो एरे है उसका साइज होगा n। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरा एरे का साइज है 5, दैट मीन्स 5 एलिमेंट मेरे पास है। 5 एलिमेंट कौन सा लोकेशन में है, 0 to 4, दैट मीन्स 0 to 5-1। सो इस तरीके से हम कोई डेटा को, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक्चुअली डिक्लेरेशन नहीं, ये हमको डेफिनेशंस देना है। डेफिनेशंस देने के बाद हमको इनिशियलाइज भी किया है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशंस के अंदर कोई डिफरेंस होता है। डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस के अंदर एक डिफरेंस है, एक तफात है। मनीष तुम बोल सकोगे क्या डिफरेंस है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में? मनीष की प्रेजेंट है? ओके मनीष, तुम बोल पाओगे डिक्लेरेशन और डेफिनेशंस में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? जैसे प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। एक क्या है, जब हम कोई चीज को डिक्लेयर करेंगे तब हम ओनली कंपाइलर को बोलेंगे ये इस टाइप का है, इसका टाइप ये है, और कुछ नहीं है। बट जब हम डिफाइन करेंगे तब उसके हिसाब से एक बफर, एक स्टोरेज एलोकेट होगा, एक मेमोरी एलोकेट होगा। और जब हम उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे एट द टाइम ऑफ मेमोरी डेफिनेशन, मेमोरी जब क्रिएट होगा उसके साथ ही जब हम उसके अंदर कुछ डेटा डाल देंगे, उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीज हमने किया है देखो, ERR, ये डेटा हमने बोला है क्या, हमने डिक्लेयर किया है ERR हमारा एक एरे है। जब हमने ये दे दिया है ब्रैकेट के अंदर, जब हमने दे दिया है तब क्या हो गया, तब ERR बोल के एक स्टोरेज मेमोरी में क्रिएट हो गया, दैट मीन्स डिफाइन डेफिनेशन हो गया। उसके बाद उसके अंदर जो डेटा हमने यहाँ पे दे दिया है वो इनिशियलाइज्ड हो गया। दैट मीन्स ये डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन तीनों के हिसाब से हुआ। सो अब हम चाहते हैं क्या, हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये एलिमेंट को हम एक्सेस करना है। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एरे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल से हमको एक्सेस करना है। ये कैसे एक्सेस करेंगे, सपोज हमको देखना है जो इंडेक्स 2 का जो डेटा है उसको देखना है। इंडेक्स 2 मतलब क्या, इंडेक्स 2 मतलब 0, 1, 2, दैट मीन्स 5, हमको रिजल्ट देना है 5। हम जब इंडेक्स 2 का वैल्यू शो करेंगे तब 5 दिखाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी फेच अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम द एरे? हम कैसे कोई एक डेटा एलिमेंट को एरे से कैसे फेच कर पाएंगे? उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है, এখানে ইকো এআরজি দিয়ে স্যার থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি 3 নম্বর হয় তাহলে 3 নম্বর 3 দিয়ে করে দিলে হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি বলি যে কিভাবে করব। হ্যাঁ তুমি কিছুটা ঠিক বলেছো, আমি বলি কিভাবে হবে। তাহলে আমরা চাইছি অ্যাক্সেস করব। অ্যাক্সেস করার যে টেকনিক সেটা হচ্ছে প্রথমে ডলার লাগাতে হবে, ডলার, ঠিক আছে। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद तुम्हार एरेटार नाम ARR, उसके बाद तुम्हार इंडेक्स, सपोज मेरा इंडेक्स हम सर्च करना चाहते हैं 2 नंबर इंडेक्स का वैल्यू, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट होगा। सो ये हो गया मेरा कोई एक एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका।
अब इसको हम इको करेंगे, सो इसको हम इको कर लेते, इको। तो हम देखना चाहते हैं क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू हुआ क्या नहीं, तो हम रन कर लेते। हम जब रन करेंगे कोई रन नहीं हुआ, एब्सोल्यूट रनिंग टाइम, तुम्हारा रन कर रहे हैं देखो तो विभू और হ্যাঁ স্যার मनीष, দেখছি। एक बार देखो तो এখানে এখানে রানের আউটপুটটা দেখাচ্ছে না। आउटपुट दिखा रहा है? আমি স্যার করছি দাদা। यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है। मनीष एक बार, मनीष तुम्हारा मशीन में एक बार ट्राई करो, मशीन में, लिनक्स मशीन में, लिनक्स मशीन में एक बार ट्राई करो, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। স্যার থার্ড প্যাকেজের মধ্যে রাখবো তো? सर अभी मेरे पास मशीन नहीं है। तो तुम्हारे पास मशीन नहीं है, विभू तुम्हारे पास मशीन है तो হ্যাঁ আমি স্যার ট্রাই করছি স্যার। हम जिस तरीके से लिखा है, हम जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिखना। হ্যাঁ স্যার ওই রকমই লিখছি। यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रन कर रहा है? না স্যার रन कर रहा है, रन कर रहा है, but রান করছে output স্যার, नहीं- কোনো ভ্যালু দেখাচ্ছে না, আমাকে কোনো ভ্যালু দেখাচ্ছে না। তুমি কি অনলাইনে রান করছো? না না অনলাইনে না, আমি স্যার ডাব্লিউএসএল মানে এটা লিনাক্সের মতো, এখানে মানে ঠিকঠাকই হয় ভ্যালু। सर मुझे सारा वैल्यू दिखा रहा है 1 2 3 4 5। तुम्हें दिखा रहा है सब सारा वैल्यू? ओके, तुम एक बार स्क्रीन को डिस्प्ले करो, स्क्रीन को एक बार डिस्प्ले करो, स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हो मनीष? सारा वैल्यू दिख रहा है, देखो देखो। तुम्हें सारा वैल्यू दिख रहा है? ओके, एक बार कौन सारा वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है? सारा वैल्यू दिख रहा है, तो सब कुछ दिखा रहा है। ओके ओके ओके, और एक बार कमेंट चलो, कमेंट करो, और एक बार कोड में चले जाओ, कोड में चले जाओ। ओके, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा ब्रैकेट में थोड़ा प्रॉब्लम, ब्रैकेट में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা কি ভিতরে হবে? ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 5 4 हाँ, ओके ओके, एक थोड़ा गलती हो गया था। ओके मनीष, तुम एक काम करो, हमने जो बनाया ना 1 2 3 4, कॉमा हटा के स्पेस दे दो, कॉमा हटा के स्पेस दे दो, कॉमा हटा के स्पेस दे दो। हाँ हाँ, कॉमा हटा के स्पेस दे दो। यस 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 यस, हाँ ले लिया, हमारा पास, हमारा हो गया। चलो আমার ओके, हो गया तो ठीक है ठीक है, चलो
विभू तुम्हारा भी हो जाएगा, विभू तुम्हारा भी हो जाएगा। हम दिखा देते मेरा जो प्रेजेंटेशन है, हम एक बार ऑन कर लेते। विभू देखो, हमने बनाया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 स्पेस 8। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिखा, हमने स्पेस देके दिखा। ये एरे 2 हमने दिया है, यहाँ पे दिख पा रहे हो, एरे 2 हमने दिया है। एरे 2 देने के बाद हम जब यहाँ पे रन कर रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरा एरे 2 का वैल्यू है 5, दिख रहा है 5। जब हम एरे 3 दे रहा है, देखो यहाँ पे हम जब एरे 3 दे रहा है, तब हम जब रन कर रहे हैं, एरे 3 मतलब मेरा 4 हो गया। देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 मेरा 4 है, 2 3 मेरा 4 है, देखो दिख रहा है। सो एरे को कॉमा नहीं, स्पेस से हम स्पेसिफाई करेंगे, स्पेस से हम स्पेसिफाई करेंगे। बोलो বিভু। আমাকে কিছু দেখাচ্ছেন স্যার, আমি শেয়ার করব। ও তুমি শেয়ার করবে, ওকে দাঁড়াও, হ্যাঁ শেয়ার করো। শেয়ার করছি। বড় করা স্যার, দেখতে পাচ্ছেন কি বড় করা যায়? বড় করা যাবে বিভু? বড় করা এখানে আমি ঠিক জানি না। আমি ঠিক আছে, ছেড়ে দাও। এ দেখুন স্যার, ARR 3 10 5 4 8 লিখেছি, ইকো স্যার ARR 2 লিখেছি, মানে 2 মানে 5 হবে, 5 আউটপুট হবে। হ্যাঁ, এবার স্যার এটাকে করলাম, সেভ করলাম। सर इनिशियलाइज कर्ली ब्रेसेस में किया। ओ इनिशियलाइज कर्ली ब्रेसेस से कियो, फास्ट ब्रैकेट से करो विभू इनिशियलाइज फास्ट ब्रैकेट से करो। ये एरे का जो है, एरे जो इनिशियलाइज फास्ट ब्रैकेट দিয়ে করো, ফার্স্ট ব্র্যাকেট। আচ্ছা। মানে আমরা সিতে যেরকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে করতাম, এটা এখানে নয়, এটা এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে হবে। ঠিক আছে? সো এবার স্যার দেখে এটা কেটে দিয়েছি। দেখো আমরা দেখে দিই। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, স্টপ স্যার। ओके, ताले हमने 2 चीज सीखा है आज। कैसे हम एरे को डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। उस इनिशियलाइज जब करेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर तो हो जाएगा ही, क्योंकि हम इनिशियलाइज करेंगे। बाद में हम देखेंगे कीबोर्ड से कैसे डेटा लेना है, वो भी हम देखेंगे। और हमने और एक चीज देखा है, कैसे हम एरे का एलिमेंट को हम यूज करेंगे। सो एज्यूम कर लेते, यहाँ पे हमने 3 फिक्स्ड किया, 4 फिक्स्ड करेंगे, 2 फिक्स्ड करेंगे, तो उसके लिए मेरा करस्पॉन्डिंग जो डेटा है, वो डेटा हमको दिख पाओगे, हम फेच कर पाएंगे। ये चीज हम एक लूप चला के भी कर सकते हैं, हम चला सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं। बट हमको जानना पड़ेगा लूप हम कितने तक चलाएंगे, कितना दूर तक चलाएंगे। क्योंकि एरे हमारे पास 5 है, तो 5 लिख देंगे तो फिक्स्ड हो गया ना। जब 7 लगाएंगे तो 7 फिक्स्ड हो गया। बट हम चाहेंगे क्या, जितना तक हम एरे देंगे, जितना एलिमेंट एरे में आएगा, उसके हिसाब से ही वो कैलकुलेट करेगा कितने तक लूप को एग्जीक्यूट करना है। सो इसीलिए हम लोग को एरे का साइज फाइंड करना है। एरे का साइज हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एरे का साइज हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते? इसलिए यूज करेंगे हम डॉलर, सेकेंड ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम, दैट मीन्स एरे का नाम ARR। ओके, पहले हम चले जाते यहाँ पे, एरे के पहले एक हैश लगा देते, एरे के पहले एक हैश लगा देते। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद हम लगा देते @ थर्ड ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया मेरा कोई एक एरे का साइज डिफाइन करने का तरीका। हम चाहते हैं कि एरे का साइज कितना है। हमारे पास जो एरे का साइज है ये 5, एरे का साइज है 5।
सो हम इसको शो करना चाहते हैं, इको करने के लिए। इको हम जब इको करेंगे, हम रन करेंगे इसको, तो देखने वाले हैं मेरा साइज जो दिखाएगा, मेरा साइज दिखाएगा 5 दिख रहा है, मेरा साइज दिख रहा है 5। पहला वाला जो दिख रहा है मेरा वैल्यू, और दूसरा वाला दिख रहा है 5। सो ये वाला जो पार्ट है, इससे हम कोई एक एरे का साइज डिक्लेयर कर सकते, दैट मीन साइज फाइंड कर सकते, एरे का साइज हम फाइंड कर सकते। ओके, हम इस एट द रेट को हटा देते, एक बार स्टार लगा देते, देखते कैसे होता है। हम यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे कंट्रोल जेड लगा देते, ये चीज ही हम एक बार कॉपी कर लेते। ये कॉपी करने के बाद हम एक बार देखते यहाँ पे स्टार लगा के होता है क्या नहीं। हम इसके ऊपर स्टार लगा देते, तो हम एक बार चेक कर लेते वो होता है क्या नहीं। बट स्टार का मतलब है हम देखते होता है क्या नहीं। देखो स्टार को, सिर्फ स्टार को इनपुट करने में भी उसको टोटल जो लेंथ है वो भी दिख रहा है। दैट मीन्स मेरा कोई एरे का लेंथ जब हम काउंट करेंगे, एरे का लेंथ जब हम देखेंगे, मेरा देखने का दो तरीका है। एक है पहला वाला, दूसरा है दूसरा वाला, ये वाला। सो दो तरीके से हम कोई एरे का लेंथ फाइंड कर सकते। सपोज इसको हम अगेन एक 45 लगा देते, सपोज मेरा एक एरे का लेंथ इंक्रीज हो गया। सपोज और एक हम एलिमेंट लगा देते 67, एरे का लेंथ और इंक्रीज हो गया। अब हम चाहते हैं क्या मेरा, क्या एरे का लेंथ 7 दिख रहा है, देखो एरे का लेंथ 7 दिख रहा है, देखो। सो एरे का लेंथ अच्छी तरीके से काउंट हो रहा है। सो इस तरीके से हम कोई एरे का लेंथ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर चीज कोई, ये दोनों में से कोई एक को तुम यूज कर सकते हो तुम्हारा ईच एंड एवरी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ओके, सो पहले हम एक चीज दिखा देते, हम पहले लूप नहीं चलाते, हम देख लेते, हम एक पर्टिकुलर कमेंट हम चलाते हैं, देख लेते हैं कि उससे हम एरे का जो जो एलिमेंट्स है वो हम दिख पाते कि नहीं, पहले हम देख लेते। हम चाहते कि एरे में जो जो एलिमेंट्स है उसको हम दिखना चाहते, एरे में जो जो एलिमेंट है उसको हम दिखना चाहते। उसको दिखने के लिए डायरेक्टली कोई लूप नहीं चला के हम देखना चाहते, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, हम डॉलर यूज करेंगे। उसके बाद एरे वेरिएबल का नाम, थर्ड ब्रैकेट के बाद हम एट द रेट लगा देते, उसके बाद हम सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते और पहले इको लगा देते, हम देखने वाले हैं क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो जब हम सेव कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कुछ आउटपुट आने वाला है, मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू दिख रहा है, मेरा जो वैल्यू दिख रहा है। सेम चीज जब हम करेंगे एट द रेट के छोड़ के जब हम स्टार लगा देते यहाँ पे, तब भी देखो क्या होता है, तब भी हम एक चीज ही पाएंगे, सेम चीज ही पाएंगे, सेम चीज ही मिलेगा। दैट मीन्स मेरा एरे के अंदर जो जो चीज है उसको हम जब देखना चाहेंगे without using the for loop and accessing each and every index, then you can see it by using these two statement। दो स्टेटमेंट तुम दे के ये चीज कर सकते हो। ঠিক আছে, সো দিস চিজ টু বি নোটেড, এগুলোকে তোমাকে পয়েন্ট আউট করে রাখতে হবে। আমি একদম পয়েন্ট ধরে ধরে তোমাদেরকে বলছি যে এইভাবে আমরা কোনো কাজ করতে পারি। सो दिस इज द एरे डेफिनेशन, एरे इनिशियलाइजेशन। ये वाला छोड़ो, ये वाला मेरा कुछ नहीं है, ये वाला छोड़ो, ये मेरा एरे डेफिनेशन है। ये वाला कोई एक एरे इंडेक्स को फाइंड करना है और उसके अंदर जो डेटा है, डेटा को एक्सेस करना है। ये है कोई एक पर्टिकुलर एरे का साइज देखना, और ये पर्टिकुलर है कोई एरे के जो जो एलिमेंट्स है उसको देखना। दो चीज, ये दोनों को देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट सेम है, दोनों में ये पर्टिकुलर पार्ट सेम है। जब उसके पहले एक हैश लगा देते हो, क्या करता, ये एरे का जो जो जितना जितना एलिमेंट है उसको काउंट करके आउटपुट दे देता। दैट मींस ये काउंट करने के लिए यूज होता है, और ये मेरा एरे का जो जो एलिमेंट्स है उसको दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एरे का कोई जो पहला एलिमेंट है, हम पहला एलिमेंट देखना चाहते हैं। एरे का हमको पहला एलिमेंट देखने का तरीका पहले ही मालूम है, क्योंकि हम कोई भी इंडेक्स से एरे का एलिमेंट हम फेच कर सकते हैं। हम दिखा देते एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट होता है, वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। मेरे पास दो तरीका है। पहला वाला तरीका है नॉर्मल तरीका है जो हम यूज कर लेते, वो है एरे
एरे के अंदर मेरा जो 0th एलिमेंट को हमको डिस्प्ले करना है। ये मेरा पहला वाला, ये हम यूज कर लिया, पहले हमने यूज किया था ये चीज। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हम यूज करेंगे जस्ट डॉलर, सेकेंड ब्रैकेट और ERR। उसके बाद हम एक बार इको लगा देते, इको देख लेते एक बार काम होता है क्या नहीं। तो हम रन कर लेते। सो जब रन कर लेते देखो दिख रहा है मेरा फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू है 3, दोनों में ही 3 दिख रहा है। दैट मीन्स कोई 0th इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक हम नॉर्मल तरीका जिससे हम कोई भी एक 0th इंडेक्स और 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स कोई भी इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस कर सकते, और दूसरा वाला पार्ट है मेरा ARR दे के हम एक्सेस कर सकते 0th इंडेक्स को। ठीक है, देखो अब तक ठीक है। तो हाँ सर, इजी है ना? हाँ सर, ठीक है। ओके ओके, ओके। अब हम देखना चाहते क्या, हम प्रिंट करना चाहते, सपोज हम ये चीज प्रिंट करना चाहते, तब सपोज कोन एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, सपोज हम चाहते हैं क्या रेंज से प्रिंट करना चाहते। रेंज मतलब हम चाहते हैं क्या एक नंबर इंडेक्स, इस एक नंबर इंडेक्स से एरे का एक नंबर इंडेक्स से मेरा लास्ट तक वैल्यू दिखे। मेरा जो है मेरा एक नंबर इंडेक्स से लास्ट तक वैल्यू दिखे, और हो सकता है हम 0 से डायरेक्ट लास्ट तक वैल्यू दिखे। सो हम कोई रेंज के अंदर जब वैल्यू डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स कौन सा रेंज, कौन सा इंडेक्स का रेंज है, उस रेंज के अंदर जब हम डेटा को देखना चाहेंगे वो भी हम देख सकते हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं क्या, टू पॉइंट और टू प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडेक्स। हम जब चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मेरा जो एलिमेंट है लास्ट तक वो दिखे, कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 0 से ऑलवेज स्टार्ट होगा ये नहीं है। हमको ये रिक्वायरमेंट आ सकता है कि हम 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, हम 3 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक जाएंगे, ये भी हम कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, सपोज हम दिखा देते। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम पहले दिखा देते, पहले 0 से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट तक। ये इससे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये चीज। सो एरे मेरा वेरिएबल का नाम है, हम चाहते लास्ट तक जाएंगे, लास्ट तक मतलब एट द रेट तक जाएंगे। उसके बाद हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया, हम इको लगा देते, ये मेरा 0 से स्टार्ट हो गया। सेम चीज हम कर लेते, चलो हम चाहते क्या, मेरा नहीं, हम 0 से नहीं, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 नंबर इंडेक्स ये चीज स्टार्ट होगा, 2 नंबर मतलब 5 से दिखेगा 76 तक, और पहला वाला दिखेगा 3 to 76 तक। देख लेते एक बार होता है क्या नहीं। सो हम इसको एक बार रन कर लेते। सो हम जब रन करेंगे, देखो पहला वाला जो दिख रहा है 3 to 76 तक दिख रहा है, 3 to 76 तक, और दूसरा वाला दिख रहा है कहां से, 2 से, दैट मीन सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट किया है। कहां तक जाना है, हमको जाना है लास्ट तक। सो सेकेंड इंडेक्स से हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ओके। और एक चीज क्या है, सपोज हम ये पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं, कोई एक इंडेक्स का वैल्यू हम 1 by 1 लूप चला के सर्च करना चाहते हैं। तो कैसे हम सर्च करेंगे, उसके लिए तुम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। हम एक बार व्हाइल लूप करके दिखा देते। सपोज i = 0 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम चलाएंगे व्हाइल से स्टार्ट करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे, कितने तक होगा, i जब i लेस देन lt मतलब लेस देन, कितना तक होगा लेस देन, मेरा एलिमेंट है 7, दैट मीन्स 0 to 6 तक चलेगा, दैट्स वाई हमने लेस देन लगाया। सो 0 to 6 देन लास्ट, दैट मीन्स साइज को हमको पाना है। साइज हम कैसे मिलेंगे, हमने दिखाया साइज हमको कैसे मिलता है, हमने यहाँ पे हैश लगा दिया, उसके बाद एरे लगा दिया, उसके बाद @ लगा दिया, थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, और उसके बाद ये वाला। सो ये मेरा हो गया मेरा व्हाइल, ये हो गया मेरा व्हाइल, ये हो गया मेरा व्हाइल। उसके बाद हम ये हो गया मेरा व्हाइल, उसके बाद डू लगा देते, डू
अब हम क्या करेंगे, हमको इको करेंगे, ईच एंड एवरी इंडेक्स को इको करेंगे। कैसे इको करेंगे, इको करना है हमको, डॉलर लगाना है, डॉलर लगाने के बाद सेकेंड ब्रैकेट लगाना है, वेरिएबल लगाना है एरे, थर्ड ब्रैकेट में लगाना है डॉलर आई, थर्ड ब्रैकेट, सॉरी थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट। सो वो पहले हमने क्या लगाया था, 0 1 2 3 लगा रहे थे। अब आई का वैल्यू 0, जब ये आई लगाया ना 1 लगाया, ये आई होगा, ये होगा आई। ये आई इक्वल्स टू 0 है, जब 0 होगा एक्स का वैल्यू 0 होगा, जब 1 होगा तब 1 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आई को इंक्रीज करना होगा। तो आई इक्वल्स टू हमने दिखा था कैसे होता है, आई आई प्लस आई प्लस 1, इस तरीके से करते थे, और ये एक्सपीआर करके लगाते थे, ये एक्सपीआर करके लगाते थे, और उसके बाद हम लगा देते डन। उसके बाद हम लगा देते डन, दैट मीन्स हम लूप चला रहे थे, तो उसके बाद हम लगा देते डन। सो इस एरे ने, जो एरे को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, उस एरे का ईच एंड एवरी इंडेक्स को हमको एग्जीक्यूट करना है, लूप के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। हमने तो डायरेक्ट ये पर्टिकुलर पार्ट लगा देते तो हमारा एरे का एलिमेंट 1 बाई 1 चले आएगा। बट कभी 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 ये रिक्वायरमेंट भी आता है हम इंडेक्स को लेके कुछ काम करें। सो जब इंडेक्स को लेके काम करना है, तब इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको फेच करना होगा। सो उसको हम लूप चला के 1 बाई 1 फेच करेंगे। सो देख लेते एक बार चलता है क्या नहीं। सो हम जब एक बार रन किया, सो देखो यहाँ पे कोई सिंटेक्स का प्रॉब्लम दिख रहा है, आई प्लस 1 का प्रॉब्लम दिख रहा है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 का प्रॉब्लम दिख रहा है, क्यों? सो आई प्लस प्लस करने से भी हो जाएगा। हाँ आई प्लस प्लस का, ओके है, आई प्लस प्लस करने से भी हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, पहले बोलो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है? प्लस की यहाँ पे देना होगा, स्पेस का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे बहुत स्पेस का प्रॉब्लम होता है। अभी भी नहीं आ रहा, ओके छोड़ो। सो हम आई पहले को डॉलर में देना पड़ेगा। आई को डॉलर में देना पड़ेगा, हम डॉलर आई, तब भी ये रहेगा, तभी भी ये रहेगा, एक बार देख लेते। तभी भी ये रहता है, कोई स्पेस में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई स्पेस में। हम एक बार, मेरा जो नोट में हमने बनाया था, एक बार देख लेते पहले कि उसमें कोई प्रॉब्लम, तो जीरो इसमें तो हमने जीरो फर्स्ट, पर वो जीरो पर पहले, इक्वलिटी पर स्पेस। नहीं नहीं, यहाँ पे एक डॉलर होगा, यहाँ पे एक डॉलर होगा। अच्छा डॉलर हाँ, है ये वाला पार्ट ठीक है, हाँ ये वाला पार्ट ठीक है, अब हम लगा देते हैं। तब भी आई इन दिखा रहा है 23 नंबर लाइन में, 23 नंबर लाइन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, आई इंटीजर एक्सपेक्टेड, सो ये यहाँ पे डबल एक डॉलर आई है। मतलब ब्रैकेट होगा। हाँ बोलो, सो ब्रैकेट डबल होगा। कौन सा पैकेट डबल होगा? सो थर्ड ब्रैकेट। ये वाला थर्ड पैकेट? यस। नहीं नहीं नहीं, ये थर्ड पैकेट डबल नहीं होगा। না ওটা তো ये যদি এ ইউজ করতো মানে এমনি যদি हाँ, এল2 थर्ड पैकेट यूज कर लो तो ओके हो गया। हमारा डॉलर नहीं लगाया था, डॉलर नहीं लगा था, इसलिए प्रॉब्लम दिखा रहा था, डॉलर नहीं लगाया था। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ठीक है, ये पे वैल्यू ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू दिख रहा है देखो 5 2 दिख रहा है, मेरा 3 यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिख रहा है, देखो 1 बाई 1 इंडेक्स को हमने एग्जीक्यूट किया, 1 बाई 1 इंडेक्स को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, दिख रहा है। सो इस तरीके से हम कोई इंडेक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये वाला पहले पहले लिख लो। ये सेम चीज को तुम फॉर लूप से भी कर सकते हो, हमने दिखा है फॉर लूप से हम कैसे करते हैं, ये सेम चीज को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक बार ले लेते हैं कैसे हम कीबोर्ड से, हाँ একটু রাখুন जी একটু রাখুন স্যার ओके আমার राघव, ओके 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 হচ্ছে ओके, लिखो लिखो लिखो, धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो। তো ওয়ান ডলার দিয়ে আসছে এবার দেখা হবে
ठीक है। হয়েছে স্পেসের প্রবলেম ছিল তাই ডলার দিন হয়েছে স্যার। ओके, सो हम एक बार देख देते कैसे हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे और कीबोर्ड से लेके हम कैसे यूज करेंगे। सो नीचे वाला सेक्शन हम इस तरीके से रख देते हैं, ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे वाला सेक्शन हम रख देते हैं, क्योंकि हम जो कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे वो कीबोर्ड से वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो कीबोर्ड से वैल्यू कैसे लेना है, हम कोई लूप चला के लिख सकते। सो तुम रीड करके, ओ यहाँ पे तो रीड करके नहीं होगा, ओ यहाँ पे तो रीड करके नहीं होगा क्योंकि ये सेल है। ओके, हम एक बार बोल देते हैं कैसे होगा, हम बोल देते हैं, तुम कोई एक बार जिसके पास लिनक्स मशीन है एक बार तुम शेयर करो, हम बोल देते हैं कैसे होता है। ये नीचे वाला सेक्शन फिक्स रहेगा, ऊपर वाला सेक्शन पे यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो कीबोर्ड से नहीं वैल्यू ले सकते हम, ऑनलाइन में रीड नहीं कर सकते हम। तो हम एक बार बोल देते तुमको कैसे होगा, ठीक है। হ্যাঁ স্যার মনীষ কি শেয়ার মনীষ কি শেয়ার मनीष तुम शेयर करोगे? मनीष, मनीष यस सर। मनीष तुम शेयर करोगे तो हम बोल देंगे ओके सर। कैसे होगा, हम बोल देंगे। नीचे वाला सेक्शन एक रहेगा, नीचे वाला जो सेक्शन है वो फिक्स रहेगा, ऊपर वाला सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा चेंज होगा ऊपर वाला सेक्शन में। ओके, हमको क्या लिखना है देखो, हम इको करने के बाद, इको करेंगे पहले, इको करेंगे, बोलेंगे इंटर द नंबर ऑफ, इंटर द एरे साइज, सब कुछ लिख लेंगे, सपोज इको कर लेंगे। इको करने के बाद लिखेंगे इंटर द एरे साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी तुम चाहो, इंटर इंटर एरे साइज। ओके, उसके बाद हम रीड कर लेते, एन करके वैल्यू रीड कर लेते, एन करके वैल्यू रीड कर लेते। ओके, उसके बाद हम एक लूप चला लेते, एक लूप चला लेते, वाइल लूप चला लेते, चलो वाइल लगा दो, वाइल चलो है, और फॉर लूप भी चला सकते हो, तुम्हारे हिसाब से फॉर लूप भी चला सकते हो मनीष, मनीष कोई बात नहीं। पहले डॉलर आई को जीरो कर लो, पहले आई को जीरो कर लो, पहले आई को जीरो कर लो, उसके बाद अगेन चलाओ डॉलर आई, जब तक लेस देन डॉलर एन होगा, लेस देन जब तक डॉलर एन होगा, एन मतलब तुम्हारा जो वैल्यू होगा। उसके बाद डू मारो, डू डूने के बाद तुम वहां पे रीड करो, रीड जो एरे का नाम है, एरे का नाम है, तुम्हारा एरे का नाम ARR है, कुछ नहीं लिखना है वहां पे, कुछ नहीं लिखना है मनीष, वहां पे कुछ नहीं लिखना है, जा डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे ARR, वहां पे कुछ नहीं लिखना था तो डायरेक्टली ले लेता, वहां पे लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। ARR1 थर्ड ब्रैकेट के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के अंदर डॉलर आई, थर्ड ब्रैकेट के अंदर डॉलर आई, उसके बाद आई को बढ़ा लो, आई प्लस प्लस कर लो, नीचे वाला सेक्शंस में आई को आई प्लस प्लस कर लो, हाँ आई प्लस प्लस कर लो और डन मार लो, डन। ये हो गया तुम्हारा एरे इनपुट लेने का तरीका, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन फिक्स्ड है, तुम कीबोर्ड से वैल्यू लो और देखो वो काम हो रहा है क्या नहीं। वहां पे 6 भी दे सकते हो, 6 मतलब डायरेक्ट 6 नहीं दो मनीष, वहां पे डायरेक्ट 6 नहीं दो, नीचे वाला सेक्शन में लेस देन में वहां पे एरे का साइज दे दो, इधर इधर डॉलर इन दे सकते हो, और जो तरीका हमने दिखाया था उससे भी दे सकते हो।
একটু প্রবলেম দেখাচ্ছে। কোথায় প্রবলেম দেখাচ্ছে গো? তো কমেন্ট নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে। ইন্টার দ্য আরএসএস দিলাম, দেখছি সবকে। অ্যারের কাছে নিচ্ছে না, অ্যারের কাছে মনে হচ্ছে কিছু গন্ডগোল হয়েছে। রিজেনের পরে যে रीड एन को पहले हटा, रीड एन को पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम फिक्स नहीं करोगे मनीष? স্যার এআরআর $1 এই দিয়েছেন। वो एरेटार नाम দিয়েছে ARR1। তাহলে ও আচ্ছা, তাহলে তো আমাকে আগে ARR1 দিতে হবে, এখানে ARR আছে। वो ARR1 লাগিয়েছে বলে তাই। তোমার যদি ARR হয় তুমি ARR লাগাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আমার ARR করা ছিল। प्रॉब्लम दिखा रहा है? कहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है? 3 4 5। कौन सा लाइन में प्रॉब्लम दिख रहा है एक बार देखो। 4 मेरा হয়নি স্যার। ये तो হয়ে গেছে। तो कहाँ पे प्रॉब्लम था मनीष? सर वो मतलब कि एलिमेंट पे तो मतलब रीड नहीं कर रहे थे ना, सो तो सिर्फ साइज का एलिमेंट मतलब ले लेते हैं, तो हर तो एक इसलिए एलिमेंट टेप पे। के अंदर लेके तुमने डायरेक्ट लगा दिया ना? यस सर, यस। मैंने एक बार दिखा दिखा। ठीक है। सो ये मेरा एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था। अब हम दोनों एक दो प्रोग्राम्स देने वाले हैं, वो दो प्रोग्राम्स को तुम सॉल्व करो। ईच एंड एवरी को स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं सॉल्व करो। ओनली मनीष बीबू और कोई एक सॉल्व कर दे ये नहीं, सबको सॉल्व करना है। पहला वाला क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। तुमको कीबोर्ड से वैल्यू लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेने के बाद एरे में जो एलिमेंट्स है उसका समेशन करना है, ऐड करना है। ये पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन है एरे में तुम डेटा लो, उसके बाद एरे में से ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहला वाला है एरे में डेटा लो, डायनामिकली कीबोर्ड से लो। उसके बाद जो डेटा एलिमेंट्स तुमने लिया उसका एडिशन करना है। दैट मींस सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। ये करना মানে है पहला वाला। অ্যারেতে যতগুলো নাম্বার নেব তার সাম করতে হবে।
সাম করে ফাইনাল রেজাল্টটা দেবে। दूसरा अच्छा वाला जो है एरे एरे में लार्जेस्ट। तुमको डेटा लेना है। डेटा लेने के बाद उसमें वो जो डेटा लिया उसमें से मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। मैंने लार्जेस्ट लोएस्ट नंबर फाइंड। लार्जेस्ट एंड लोएस्ट नंबर को फाइंड करना, ये पहले करो। हम ये देखना चाहते हैं तुम कर पाते हो क्या नहीं। सर हाँ सर जो पहला मनीष, पहला वाला क्वेश्चन है उसमें मतलब एरे में डेटा लेना है, एरे में कीबोर्ड से डेटा लेना है। तो उसके उसका शो बाद करेंगे। हाँ तुम शो कर सकते हो, एरे में डेटा लेने के बाद उसको शो करो। उसके हाँ बाद रिजल्ट एडिशन करो, करे शो करो फाइनल रिजल्ट। सर साइज पहले पूछेंगे कि नहीं पूछना है साइज सर? तुम पूछो, साइज तुम पूछो, हाँ साइज पूछ लेना। 10 साइज 11 साइज जो भी हो साइज तुम पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, सो ये करके हमको दिखाओ, अभी के अभी दिखाओ। जो ये पर्टिकुलर ब्राउजर यूज कर रहे हो, दैट मीन्स ये वेबसाइट यूज कर रहे हो, ये वेबसाइट यूज करके जो जो काम कर रहे हो वो कीबोर्ड से वैल्यू नहीं ले पाओगे, ठीक है। तुमको वो वैल्यू नहीं लेना है कीबोर्ड से, डायरेक्टली वो वैल्यू रख दो। बट जो एडिशन वाला जो लॉजिक है उसको लगा लो, वो तो चलेगा ही, वो लगा लो। पहला वाला जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इजी है, बहुत इजी है। सेकेंड वाला प्रोग्राम थोड़ा लॉजिक अच्छी तरह से समझ के करना है।
কত দূরে গেল বিভু? বিভু এগোতে পেরেছে? বিভু এরর কি টোকেন এরর হচ্ছে হচ্ছে না, এবার তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো, দেখছি স্ক্রিনটা শেয়ার করো। নাম্বার যখন লিখবো হুম, তুমি তখন স্ক্রিন শেয়ার করো, আমি করছি। তুমি স্ক্রিনটা আগে শেয়ার করো। আচ্ছা স্যার করছি। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছেন? বলো। হ্যাঁ স্যার এটা তো নাম্বার যখন লিখছি তখন কি টোকেন এরর দিচ্ছে একবার বুঝতে পারছি। কি বলছো? আচ্ছা, এন্টার দ্য সাইজ, রিড এন। আচ্ছা, যেমন I equal 0, sum is equal to 0, enter number while read num. হুম, না না, এইভাবে না, অ্যারের মধ্যে আগে ভ্যালুগুলো নিয়ে নিতে হবে বিভু। আগে অ্যারের মধ্যে ভ্যালুগুলোকে স্টোর করতে হবে, তারপর অ্যারের এলিমেন্টের মধ্যে থেকে আমি অ্যাডিশন করব। আমার অ্যারের মধ্যে এলিমেন্ট নেওয়া আছে, তুমি এখানে অ্যারের মধ্যে এলিমেন্ট নাওনি, ডাইরেক্টলি সাম করছো, সেটা নয়। তোমার অ্যারের মধ্যে আগে এলিমেন্ট আছে, তুমি আগে একটা অ্যারে ডিফাইন করে ফেলো। এখানে এখানে একটা অ্যারে ডিফাইন করে ফেলো, সাম থাকুক না, অ্যারে ডিফাইন করে ফেলো। হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু দিয়ে ভ্যালু কিছু নিয়ে নাও, ইনিশিয়ালি করে না, দরকার নেই, কিবোর্ড থেকে নিতে হবে না, ভ্যালু কিছু নিয়ে নাও। না না, অ্যারে ফার্স্ট ব্র্যাকেট, হ্যাঁ ওর মধ্যে শিফটটা হ্যাঁ হ্যাঁ টিপা 1 ভ্যালু দিও, 5 6 নিয়েছো? এইবার তোমার অ্যারের মধ্যে ভ্যালু আছে, এইবার তুমি লুপ চালাও। লুপ চালিয়ে এবার তুমি সামেশন সাম যেরকম 0 রেখেছিলে সেরকম 0 রাখো, অ্যাডিশন করো, সবই করো। এবার তোমাকে করতে হবে। আর যদি কিবোর্ড থেকে নিতে, আগে যেরকম মনিটর করে দেখালো যে কিবোর্ড থেকে আমি ওইভাবে অ্যারের মধ্যে ভ্যালু তুলবো, তো ওইভাবেও তুলতে পারো। I equal to 1 सर फर्स्ट हो गया। पहला वाला हो गया, आउटपुट मिल रहा है? यस सर। ओके, सेकेंड वाला तुम करो, नींबू का ये चीज हो जाए उसके बाद देखना, देखेंगे तुम्हारा। सेकंड वाला में क्या करना है? सेकेंड वाला में तुमको एरे में डेटा लेना है, तुम कीबोर्ड से भी ले सकते हो, डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हो। এখানে उसके যে बाद নাম্বার ভ্যারিয়েবলটা নিয়েছি, নাম্বার ভ্যারিয়েবল বোধহয় ডিক্লেয়ার করা হয়নি। এখানে ডিক্লেয়ার তো এইভাবে করতে হয় না। চল এবার তাহলে হওয়া উচিত। सर उसके बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो जो एरे में एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। सर मतलब कि मैक्स कौन सा है और मिन कौन सा है? मिन कौन सा है, उसमें से मैक्स कौन सा है और मिन कौन सा है, राइट। सर इसका कोई फंक्शन है क्या कि मतलब कि लॉजिक नहीं लगाना नहीं है? नहीं, तुमको लॉजिक लगा के बनाना है, लॉजिक लगा के। ओके सर। এন্টার সাইজ এগুলো তো দেওয়ার দরকার নেই, আমি তো অ্যারে আগে থেকে ডিফাইন করে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ওসব লাগবে না। তুমি এবার লুপ চালাও, আই ইকুয়াল টু 0 থেকে ডলার এন হবে না, এখানে ডলার এন তো নয়, এখানে কিছু অ্যারেটার সাইজ দিতে হবে। অ্যারেটার সাইজ কি করে ফাইন্ড করে আমরা দেখেছি, অ্যারেটার সাইজ কি করে ফাইন্ড করে। ডলার এট দ্য রেট না, কিভাবে হয় বলো, ডলার তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ডলার সেকেন্ড ব্র্যাকেট, আচ্ছা আচ্ছা ওটা তারপরে মনে আছে। হ্যাশ। আচ্ছা হ্যাঁ এ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আর থার্ড ব্র্যাকেট এট দ্য রেট, আগে স্যার হ্যাশ হবে, আগে হ্যাশ গোলমাল করেছো। হ্যাঁ, আগে হ্যাশ হবে, হ্যাঁ সেটা ডলার তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তুমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছো মোস্ট প্রবাবলি। না স্যার এই তো ডলার পরেই তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিন। সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়েছো, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ছোট তো বোঝা যাচ্ছে না। না না এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, নাম বলে এখানে আর কিছু নেই, নাম্বার বলে তো কিছু নেই, নাম্বার হাটাও। এবার তোমার কি এক একটা অ্যারের এলিমেন্ট রিড করতেই হবে না, রিড কেন করবে, তোমার তো অ্যারের মধ্যে এলিমেন্ট আছে।
তুমি তো অ্যারে থেকে ইন্ডেক্স গুলোকে নিয়েবে, ইন্ডেক্সের ভ্যালু গুলোকে তুলে সাম করবে, মানে অ্যারের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের সঙ্গে যোগ যোগ করবে। তাহলে সাম ইকুয়াল টু কি করবে? সাম ইজ ইকাল টু সাম প্লাস, যেভাবে করে সাম ইজ ইকাল টু সাম প্লাস। স্যার অ্যারে তো অ্যারে কি করে নেব, অ্যারের এক একটা ইন্ডেক্স, এক একটা ভ্যালুকে কি করে ফেচ করব দেখলাম না, ডলার অ্যারে ডলার আই, অ্যারে এক একটা এলিমেন্টকে কি করে ফেচ করব দেখলাম তো। ডলার আই দিয়ে না? আচ্ছা, ডলার সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ডলার সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপরে অ্যারে এআরআর ডলার থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ডলার আই, এআরআর থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ডলার আই, তাই তো? আচ্ছা ফার্স্ট ব্র্যাকেট নয় কিন্তু, দুটো দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট পড়বে, দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছে তো সামের আগে, সামের আগে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট করেছি। সামের আগে দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দাও, আর সামের ব্যাকে মাঝখানে স্পেস থাকবে না, হ্যাঁ, ডলার ব্র্যাকেটের মাঝখানে স্পেস থাকবে না, না ওটা থাকবে না, কিন্তু এরপরে জাস্ট এখানে স্পেস থাকবে তো? ওখানে স্পেস থাকবে আর এদিকেও স্পেস থাকবে। হ্যাঁ, আর আই এর ভ্যালু আই প্লাস ওয়ান করেছে একদম ঠিক আছে। আচ্ছা সামটাকে না ডলার সাম করো, হ্যাঁ, এটা তো ডলার ছিল, হ্যাঁ এটা জানি। ঠিক আছে, এবার নিচে ডলার সামটা প্রিন্ট করে দাও, ওকে ওকে ওকে। এবার দেখো তো এরর কিছু দেয় কিনা। হ্যাঁ স্যার, একটু দেখছি। এখানে এন্টার দিয়ে সাইজ কেন হচ্ছে? রিড ফিট কিছু করেছো হয়তো, তারপরে রিড কিছু করা আছে, না, রিড তো উঠে দিয়েছি। সেভ করেছো ফাইলটাকে, ওই তো রিড করা আছে, হ্যাঁ ওগুলো তো এটা আগে কাজে লাগে। আমি যে আগে মানে ওই পেজটাতে করছিলাম ওই জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাকে পরে না বিভু, তুমি ওটা কিবোর্ড থেকে ভ্যালু নেওয়া, কন্ট্রোল জেড মারো, কন্ট্রোল জেড, হ্যাঁ তুমি এবার কিবোর্ড থেকে ভ্যালু নেওয়াটাও কিন্তু শিখে নিও। ঠিক আছে 14 আছে, 14 কি রেজাল্ট আছে দেখে নাও একবার। 10 15 হচ্ছে তো, 10 5 15। আচ্ছা, এটা 0 থেকে শুরু করতে হবে, i equal to 0। হ্যাঁ 0 নম্বর পর। 0 1 2 3, হ্যাঁ চলো। ক্লাসে একটা এরর দিয়েছে 13 নম্বর লাইনে, 13 নম্বর লাইনটা একটু দেখো। ক্লাসের স্পেস দিয়েছি তো, স্পেস কি হবে না? হবে হবে, দাঁড়াও, ডল সাম ইজ ইকুয়াল টু সামের মধ্যে 0, তারপরে সাম ইজ ইকুয়াল টু, কি এররটা দিয়েছে দেখো তো, কি এররটা একবার দিয়েছে দেখো তো। এরর দিয়ে সিনট্যাক্স এর অপারেন্ড এক্সপেক্টেড এরর টোকেন ইজ প্লাস। প্লাসের পর একটা, আচ্ছা প্লাসের পর স্পেসটাকে হাটিয়ে দাও, দুটো স্পেসই দেখি হাটিয়ে দাও দেখি। তাও দেখাচ্ছে 15 প্লাস, একটা দেখাচ্ছে 15 প্লাস, 13:15 প্লাস, মানে সামেই নিয়ে নিচ্ছি অ্যারের। দাও একবার ভাবতে দাও, এল ই লেস ইকুয়ালস টু কেন, লেস দেন এল টি হবে, আমি এতে লিখবো তেমন স্যার, ওতে লিখতে গেলে শুধু আপনার ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হয় না, আপনার যেটা কি বলে কোনটা কোনটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেবো, আপনি দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট, যেটা মানে এমনি যখন লিখতে মানে গ্রেটার দেন লেস দেন সাইন গুলো যে দিয়ে হ্যাঁ যখন, তখন ডবল ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবে, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে।
কেন হচ্ছিল বলতো, ওটা তো অ্যারে আউট অফ বাউন্ড হয়ে যাচ্ছিল, মানে অ্যারে ইন্ডেক্সের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তাই জন্য এররটা দিচ্ছে। এরপর স্যার লার্জেস্ট আর লোয়েস্ট। হ্যাঁ, এবার লার্জেস্ট আর লোয়েস্ট। আর বাকিরা কি খবর? বাকিরা বিভু করতে পেরেছে, মনীষেরটা হয়ে গেছে, বাকিদের কি খবর? বাকিরা মনীষ হচ্ছে, সায়ন কিছু বানিয়েছো? সায়ন, রোহিত, সুদীপ্ত, কই দেখেছো? দেখেছো? সব ভয় পালিয়ে যাচ্ছে। আরে অনলাইন আছে তো, অনলাইনে তো এডিটর আছে, দেওয়া আছে তো এডিটরটা, অনলাইনে সেলটা ইউজ করে করো। তোমাকে যে সবসময় মেশিন থাকতে হবে তা নাও তো হতে পারে। মনীষ করছে তার এতে ফোনে, তুমি করতে পারছো না? সায়নের কি খবর? সায়ন কমপ্লিট করো। একইভাবেই বিভু বনিস করো, খালি ভেতরের লজিকটা চেঞ্জ হবে। সামের লজিকটার জায়গায় তোমার এখানে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামের লজিকটা বসাতে হবে। স্যার এখানে কি এমনি মানে প্রথমটাকে ম্যাক্স ধরবো, তারপর এক একটা করে কম্পেয়ার করব, যেটা হুম, বড় হবে সেটাকে আবার প্রিন্ট করবো। হ্যাঁ, এখানে একটা ভ্যারিয়েবল রাখো, একটা দুটো ভ্যারিয়েবল রাখো, একটা ভ্যারিয়েবলকে ম্যাক্স বলে রাখো, একটা ভ্যারিয়েবলকে মিন বলে রাখো। এবার তুমি 0th এলিমেন্ট থেকে লাস্ট এলিমেন্ট পর্যন্ত চেক করতে করতে যাবে। ধরে নাও প্রথম 0th এলিমেন্টটাকে ম্যাক্সের মধ্যে ফেলে দাও, আর 0th এলিমেন্টটাকে মিনিমামের মধ্যে ফেলে দাও, ঠিক আছে? এইবার তুমি স্টার্ট করতে শুরু করলে, 1 নম্বর এলিমেন্টের সঙ্গে স্টার্ট করতে শুরু করলে, কার কম্পেয়ার করবে? ম্যাক্সেরটার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে 1 নম্বর এলিমেন্টটা। যদি দেখা যায় যে 1 নম্বর এলিমেন্টটা ম্যাক্স, তাহলে আবার ম্যাক্স ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ফেলে দিলে। যদি দেখো যে না, বড় নয়, তাহলে 2 নম্বর ইন্ডেক্সের সঙ্গে আবার চেক করবে। এইরকম ভাবে যদি বড় হয় তাহলে ম্যাক্সের মধ্যে পড়বে, যদি বড় না হয় তাহলে ম্যাক্স অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। এরকম করতে করতে সবকটা ইন্ডেক্স ভিজিট করা হয়ে যাবে, ম্যাক্সের মধ্যে ম্যাক্সিমামটা চলে আসবে। মিনিমামটা কি একইভাবে তুমি সব চেক করবে, মিনিমাম কোনটা। আগে মিনিমামের মধ্যে 0th এলিমেন্টটাকে তুলে রাখো, এইবার 1 নম্বর থেকে কম্প্যারিজন শুরু করো। 1 নম্বরের সঙ্গে মিনিমাম ভ্যারিয়েবলের কম্প্যারিজন হবে। যদি 1 নম্বরের ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা ছোট হয় তাহলে মিনিমামের মধ্যে চলে আসবে, যদি না হয় তাহলে মিনিমামে যা ছিল তাই। দেখেন 2 নম্বর ইন্ডেক্সের সঙ্গে চেক হবে, 2 নম্বর ইন্ডেক্সের সঙ্গে আবার মিনিমামের চেক হবে। স্যার যদি আলাদা দেখা যায় যে এক স্যার হুম, তাহলে কি হবে, একইভাবে চেক করতে করতে মিনিমাম এলিমেন্টটা মিনিমাম তোমার ভ্যারিয়েবলের মধ্যে চলে আসবে। স্যার তো দুটো মিনিমাম আলাদা, স্যার হ্যাঁ, লার্জেস্ট দুটো আলাদা আলাদা করে। আলাদা আলাদা করে করি, তারপর এক্সপ্লেন করবো। হ্যাঁ, তাই করো। আগে একটা একটা করেই করো, আগে ম্যাক্সিমামটাই বার করো, তারপরে মিনিমামটা বার করো, তারপরে দুটোকে জুড়ে দেবে। আগে একটাই বার করো, ম্যাক্সিমামটাই বার করো, আগে প্রথমে ম্যাক্সিমামটাই বার করো। সেম লজিক, ম্যাক্সিমামটাই বার করো, ম্যাক্সিমাম পারলে মিনিমামের লজিকটা সেম ভাবে লাগাবে।
বিভু এগোতে পেরেছো? স্যার করছি স্যার। এগোতে পেরেছো কিছুতে? লজিকটা এগোতে পেরেছো? লজিকটা ওকে একবার বিভু শেয়ার করো মেশিন। হ্যাঁ স্যার করছি স্যার, তেমন এগোতে পারি না। ঠিক আছে, আমি স্যার একটা হয় 1 এর সাথে কম্পেয়ার করে, ওকে আমি বলে দিচ্ছি। একটা স্যার হয় 1 এর সাথে ওকে আমি লজিক দেখাচ্ছি তোমাকে, ওয়ান হ্যাঁ নয়, স্যার। তোমার লজিকটা বলছি, খুব সহজ লজিক। তোমার অ্যারের মধ্যে কোন এলিমেন্ট রয়েছে? কি কি এলিমেন্ট রয়েছে? 3158 এরকম কিছু একটা এলিমেন্ট আছে মনে হয় না? হ্যাঁ স্যার আমি একটু নিচে নামাচ্ছি এটাকে। একটু নিচে নামিয়ে নাও তো, হ্যাঁ। ওকে 13556, ওকে ওকে ওকে। তুমি একটা কাজ করো, একটা ভ্যারিয়েবল নাও ম্যাক্স, MAX, ম্যাক্স, ম্যাক্স বলে একটা ভ্যারিয়েবল নাও। ম্যাক্সিমামটা দেখিয়ে দিই, মিনিমামটা নিজে বাড়িতে করবে। ম্যাক্স ইকুয়ালস টু, এখানে তুমি 1 লেখো ডলার, ডলার, না না, ডলার, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ARR, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে 0। পেরেছি, মানে 0 নম্বর এতে যে আছে, অ্যারেতে যে আছে ওটাকেই ম্যাক্স হিসেবে প্রথমে ধরছি। প্রথমে ধরে নিলাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, এবার 1 আমি 2 লিখব, এমনি উঠিয়ে দিয়ে একটা 4 করে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ। ওকে। এবার ধরে নাও তুমি i ইজ ইকাল টু 1 থেকে স্টার্ট করো, i ইজ ইকাল টু 0 না করে i ইজ ইকাল টু 1 থেকে স্টার্ট করো। মানে কম্প্যারিজনটা হবে 1 নম্বর ইন্ডেক্স থেকে, তাহলে i ইজ ইকাল টু 1 থেকে স্টার্টিং হবে, লেস দেন। ওকে, এবার ডু করব। কতক্ষণ ডু করব লেখো। এবার এর মধ্যে হবে ইফ, ইফ, হচ্ছে না। কন্ডিশন চেক করতে হবে তো। ইফ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ইফ যদি স্যার ডলার আই, মানে ইফ স্যার ডলার আই গ্রেটার দেন, না ইকুয়াল টু দিয়ে চেক করতে, ইফ না ডলার না, আই। ডলার আই নয়, ডলার আই নয়, ইফ থার্ড ব্র্যাকেট দাও, ইফ থার্ড ব্র্যাকেট দাও। কোন দিকে দিচ্ছ এই বিভু? নিচে দিলে হবে না? হ্যাঁ উপরে, ইফ যেরকম হয়, হ্যাঁ। আচ্ছা স্পেস দাও। যদি দেখা যায় ডলার দাও, ডলার, ডলার সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ARR, ডলার আই, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ডলার আই, সেকেন্ড ব্র্যাকেটের বাইরে চলে এসো, স্পেস দাও। যদি হাইফেন গ্রেটার দেন হাইফেন জিটি, যদি দেখা যায় ম্যাক্স, ডলার ম্যাক্স, ডলার ম্যাক্স, ওকে, দেন স্পেস দাও। দেন দেন আমরা ম্যাক্সের মধ্যে ম্যাক্স ইকুয়ালস টু, দেন এন্টার, দেন এন্টার, দেন এন্টার, ম্যাক্স ইকুয়ালস টু
ডলার সেকেন্ড ব্র্যাকেট হ্যাঁ অ্যারে ডলার আই কি বললাম, যদি অ্যারের ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা মানে অ্যারের ওই ভ্যালুটা যদি ম্যাক্সের থেকে বড় হয় তাহলে ম্যাক্সের মধ্যে ওই ভ্যালুটাকে রেখে দেবে, দিয়ে ইফের পর এই করো, ফাই করো, ফাই এন্টার মেরে ফাই করো আর ডান করো, হয়ে গেল। এবার ম্যাক্সের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেলে ম্যাক্সিমামটা পড়ে থাকবে, ইকো ম্যাক্স করো, নিচে এন্টার মেরে ইকো ম্যাক্স করো, ডলার ম্যাক্স, ডলার ম্যাক্স, ডলার ম্যাক্স, তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা এখান থেকে চলে আসবে। এবার চালিয়ে দেখো তো ভ্যালু আসছে কিনা। তোমার এখানে কি আছে, 4 5 6, 4 3 5 6, তুমি 6টা ম্যাক্সিমাম হওয়ার কথা, দেখো তো আসছে কিনা। ভ্যালু চাইছে কেন, রিড রিড কিছু দিয়েছো, লিড ফিড লাগিয়েছো নাকি? এখানে না স্যার, লিস্ট এখানে কিছু নেই। তাহলে কিছু পিং করছে না কেন? ওকে কন্ট্রোল জেড মারো, কন্ট্রোল জেড মারো, দাঁড়া একবার চেক করে নিতে দাও। হুম চলো চলো, হলো না রিভু, হলো না? প্রবলেম দেখাচ্ছে, দাঁড়াও দেখছি। এর হচ্ছে 4 3, আচ্ছা এর পর ওই যে ব্র্যাকেটটার পর একটা স্পেস দিয়ে রেখেছো তুমি, এর পর প্রথম প্রথম যে অ্যারেটা ডিক্লেয়ার করেছো না, ওখানে একটা স্পেস পড়ে গেছে। হ্যাঁ তাও নিচ্ছে। ওকে, অ্যারের মধ্যে 4 3 5 6 ভ্যালু রেখেছো, ম্যাক্সের মধ্যে ডলার অ্যারে 0 হোয়াইল ডলার আই যদি লেস দেন অ্যারে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি 0 হয় তবে কি করবো? ও আই প্লাস প্লাস করোনি তো? ওহো, এখানে আই প্লাস প্লাস, ফাই এর পর, ফাই এর পর, ফাই এর পর, ফাই এর পর, 5 এর পর হ্যাঁ আই আগে একটা ডলার লাগাও, আর এদিকে একটা ডলার লাগাও, দুটো ডলার লাগাও। ডলার চার দেখাচ্ছে, কোনটা প্লাসে প্রবলেম হয়েছে, প্লাসে আবার কিছু প্রবলেম হয়েছে, 0 লেস দেন সিনট্যাক্স এর অপারেন্ট টোকেন কত নম্বর লাইন গো? লাইন নাম্বার 15। 15 নম্বর লাইন, তো প্লাস 1 দিন। কাছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইভাবে মিনিমামটা করে নেবে। এবার ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামটা একটাতেই পাঞ্চ করে দেবে, ফলে তুমি অ্যারেটা দিলেই ও ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামটা দেখিয়ে দেবে। একটা জিনিস এখানে একটু ভ্যালু চেঞ্জ করেছে, তুমি যা খুশি দাও, মাইনাস দাও, ভ্যালু দাও, 100 দাও, 200 দাও, যা খুশি দাও। মানে হ্যাঁ স্যার, একটা মাইনাসে সবচেয়ে মানে এমনি ভ্যালু হিসাবে সবচেয়ে বেশি রে, এই তো।
ঠিক আছে? মিনিমামে যদি এটাকে মিন করে দেবো, হ্যাঁ, মিন করলে ওটা লেস দ্যানের যে ওখানে গ্রেটার দ্যানের জায়গায় লেস দ্যান হবে। লেস দেন করে দেবো, তাহলেই তো একদম হয়ে একদম যাবে। একদম মানে সেম। মিন করারও দরকার নেই, মানে বোঝার সুবিধার জন্য, নাহলে মিন হ্যাঁ, করারও নাহলে তো হবে না, নাহলে তো হবে না, নাহলে বুঝবে না তো। হ্যাঁ বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমাদের রোল নাম্বারগুলো একটু লিখে নিই, আমরা আবার নেক্সট উইকে বসছি তোমাদের সঙ্গে। আচ্ছা, রোল নাম্বার কে কে আছে? রোল নাম্বার 1 নেই, রোল নাম্বার 2, রোল নাম্বার 3, রোহিত কে কে আছে? রোহিত, তুমি একটা আমাকে পাঠিয়ে দাও, মেসেজ করে দাও। রাজর্ষি ছিল, 9 ছিল। সব নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, যারা আছে তা দিয়ে রোহিত পাঠিয়ে দাও। ওকে, এরা আছে 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট উইকে তোমাদের সঙ্গে বসছি। ওকে, আর একটু পড়াশোনা করো, এগুলো একটু প্র্যাকটিস